So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that every Tuesday and Wednesday I meet you on this YouTube channel. So जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर ट्यूसडे और वेंसडे 7 बजे आपसे मुलाकात होती है और ऑन ट्यूसडे वी डिस्कस स्टैटिक जीके एंड ऑन वेंसडे वी डिस्कस करंट अफेयर्स. Okay, so yesterday we had discussed a static GK, है ना. So if you have not watched the video, please go first of all subscribe to our channel, go to the live section and watch the yesterday's video, the static GK portion. Okay. Now we are doing current affairs also on Wednesday at 3 p.m. We are doing current affairs discussion. So let us begin with today's class. So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes. Is the slide visible? Is everything fine? Chalo, so let us start with the question and answer. Yes, good evening, Pragya Pandey. My voice is clear, the slide is visible, everything is clear? Okay, fine. Okay, I think I'm audible, visible, everything is fine. So let us begin. It's 7 p.m. So let us begin with the class. 7 baj gaye hain. So let's start the class. So the first question is, who among the following was elected as the first woman to lead United Nations Tourism from 2026? UN Tourism ki body. Your options are Sheikh Al-Nawais, Rania Al-Mashat, Fatou Bensouda, Natalia Kanem. What is the right answer to this question? बताइए. If you know the answer, please write in the comments. नीचे लाइव चैट में आप आंसर कीजिए. I'll be very happy to know. So the right answer is, what is the right answer? बताते चलिए. The right answer is option A, Sheikh Al-Nawais. So A is the right answer to this question. ठीक है. 123rd UN Tourism Council के है ना, has been elected as, है ना, sorry. And the term will begin from January 2026. That is what you should know. आप देख सकते हो, Sheikh Al-Nawais nominated as first woman Secretary General of UN Tourism as Executive Council builds on strong legacy. ठीक है. Yeah, so the right answer is A. Let's move on to the next one. Yes, good evening, Ananya. Welcome to the class. So please answer these questions which I am asking. जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका आंसर कीजिए और इस तरह से हम लोग डिस्कस करते जाएंगे करंट अफेयर्स. Who among the following was recently crowned Miss World 2025? और Miss World 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? Where it was organized? इनमें से किसको मिस वर्ल्ड 2025 का अवार्ड मिला है और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? So the right answer is option. Which option? Please tell me. मिस वर्ल्ड 2025 के विजेता का नाम बताना है. The right answer is option D, ओपल सुचाता चौंगसरी. ठीक है, so D is the right answer. और मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? और जो आती है, she is actually from Thailand. And Miss World 2025 was organized in India. इंडिया की कौन सिटी में? Which city? ये बताइए. Which city of India hosted Miss World 2025? बताइए. हैदराबाद. ठीक है. ओके, सो आप देख सकते हो मिस वर्ल्ड 2025 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था. एंड द विनर इज सुचाता चौंगसरी फ्रॉम थाईलैंड. ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी. ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट. ओके, नहीं मुंबई में नहीं हुआ था, हैदराबाद में हुआ था. ठीक है, इट वाज द 72nd एडिशन, है ना. और इंडिया ने थर्ड टाइम होस्ट किया था. बिफोर दैट इंडिया होस्टेड इन 1996 एंड 2023 आल्सो, है ना. ओके, 31st May 2025 को होस्ट किया गया था. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया, है ना. The next is, who is the first woman Navy officer
appointed as ADC, aide de camp to the president? Priya Sinha, Sunita Sharma, Yashasvi Solanki, Neha Bhatia. What is the right answer to this question? फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर जो कि एडीसी बनाई गई है प्रेसिडेंट की. एडीसी में देखते समझ लो कि एन ऑफिसर हु इज अ टाइप ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो किनको बनाया गया एडीसी, कौन सी नेवी ऑफिसर है? एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम. एनीवन? The right answer is option C. Yashasvi Solanki is the right answer to this question. ठीक है. Lieutenant Commander Yashasvi Solanki, first woman Navy officer to be appointed as ADC to President. ठीक है. So आप देख सकते हो white dress में जो है ना. Yes, the right answer is C. Yes, Ananya Khurana, you're right. C is the right answer. Let's move on to the next one. Where was CAR T cell therapy recently performed in a tier 2 city? ये CAR T cell therapy क्या होता है? Chimeric antigen receptor. Antigen receptor is CAR और फिर T cell, मतलब T cell जो होता है it is used in fighting immunity है ना. So ये basically क्या है? In fighting against diseases. तो CAR T cell therapy is a therapy against what we call it as blood cancer. कैंसर के अगेंस्ट है, स्पेशली ब्लड कैंसर. मतलब एक तरह का ब्लड कैंसर का इलाज है समझ लीजिए, CAR T cell therapy. तो रिसेंटली कौन से शहर टीयर 2 सिटी में ये कंडक्ट किया गया ये थेरेपी? नाउ इट इज अलाउड. तो इसको सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया इस थेरेपी को. कहाँ, कौन से शहर में? इन विच सिटी? सो द राइट आंसर इज यस, नागपुर. राइट, प्रज्ञा पांडे, यू राइट. हाँ, इन नागपुर, महाराष्ट्र. सो बी इज द राइट आंसर. एंड इम्यूनोथेरेपी पोजिशन सेक्टर टू फाइट कैंसर है ना. देखो स्कार लिखा ना, CAR. कैर का मतलब होता है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल. टी सेल्स आर एक्चुअली helpful in immunity etc. ना. So that is what you should know. T cell और B cell होता है human body के अंदर which fights against the pathogen. Okay. है ना. Nagpur first in central India to offer CAR T cell therapy. Okay. Let's move on to the next one. Who among the following won a gold in men's javelin throw at Asiatic Athletics Championship 2025? Javelin throw समझते हो ना, जो the sports related with नीरज चोपड़ा etc. ना, तो उनको javelin throw कहते हैं. So किसने जीता गोल्ड? So but नीरज चोपड़ा did not play, so A is not the answer. So gold जीता है I think Ashar Nadeem and second is Sachin Yadav. So Pakistan's Ashar Nadeem won gold with 86.4 meter throw and Sachin Yadav is the second one to win silver. नीरज चोपड़ा as far as I could remember he did not play. उन्होंने खेला ही नहीं कुछ किसी कारण से, बिकॉज ऑफ सम रीजन. ठीक है, सो हियर द राइट आंसर इज सी. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली एट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. व्हाट इज द राइट आंसर? इंडिया की रैंक कितनी हुई मेडल के मामलों में? सो द राइट आंसर इज बी, यानी सेकंड रैंक. ठीक है, 24 medals, 8 gold, 10 silver, 6 bronze. India finished second. So B is the right answer to this question. The next is what percentage of government job reservation has been recently proposed for scheduled tribes in Ladakh? 60%, 75%, 85%, 95%. What is the right answer? बताइए. The right answer is C, 85%. ठीक है, लद्दाख. ठीक है, so C is the right answer. Let's move on to the next one. Which state government has planned to establish first tiger safari in fringe area of Barwadih Western Forest Range, which falls under Palamu Tiger Reserve? टाइगर सफारी समझते हो? आई एम श्योर कुछ लोग शायद गए भी होंगे. जैसे अगर आप किसी नेशनल पार्क में जाओगे, अगर आप कुछ टिकट पे करके आपको जिप्सी पर अलाउ किया जाता है कि आप अंदर जाओ, है ना. सो वेयर द टूरिस्ट आर अलाउड टू गो इनसाइड द नेशनल पार्क. They are allowed to sit on the gypsy and they are allowed to go inside the national park. That's called as tiger safari by paying a particular ticket fees, है ना.
So Palamu Tiger Reserve, where you will find Palamu? बहुत famous जगह है Palamu. Palamu Tiger Reserve is in Jharkhand. So they are coming up with tiger safari in Jharkhand. So A is the right answer to this question. First tiger safari, Palamu Tiger Reserve. Yes, Ananya Khurana, you're right. A is the right answer. काफी famous जगह है Palamu. Palamu is the name of the train also. Palamu Express. Okay, and Palamu is actually famous for its desert. I mean, desertic region. So in Palamu, there are areas where actually there is water crisis, water shortage also. Those who are from the state of Jharkhand must be aware of this. Okay, let's move on. What is the significance about the new Jammu Railway Division? So division is actually an area which is demarcated for the purpose of railway administration, and the head of division is DRM, Division Railway Manager. है ना? So DRM कहते हैं ना, हाँ, Divisional Railway Manager something करके होता है full form. So the right answer here is it is the first in the Himalayan region. So B is the right answer to this question. So Himalayan region में पहला बनाया जा रहा है. And why it is important? Because I hope you are aware अभी recently PM Modi inaugurated Vande Bharat Express trains, है ना? From Katra to Srinagar I think चलेगी ना ऐसे. The idea is actually to connect पूरा बारामूला to जम्मू पूरा connect करने का target है. और यहाँ पर एक बनिहाल काजीकुंड है, फिर यहाँ पर एक ये है, there's a bridge on Riyasi district which is very famous on Chenab river. I'm sure you must have seen that image. आप ये फोटो देखी होगी, बहुत हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन चेनाब रिवर, है ना? तो ये लाइन कनेक्ट होगी तो बारामूला से लेकर कटरा तक पूरी रेलवे लाइंस कनेक्टेड होगी. So B is the right answer. That is what you should know, है ना? Which of the following cities recently launched Madhya Pradesh first metro rail service? Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur. What is the right answer? बताओ. The right answer is yes. Pragya Pandey, you're right. The right answer is option C, Indore. फर्स्ट अर्बन रेल लाइन. ऐसे इंदौर और भी चीज के लिए फेमस होता है, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण में इनका हमेशा रैंक 1 रहता है अक्सर. स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीनलीनेस रैंकिंग में, है ना? यस, सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज हु वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पोलैंड 2025. पोलैंड में भी इलेक्शन हुआ था. पोलैंड इज अ कंट्री इन यूरोप. कौन प्रेसिडेंट बने थे बताओ. एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड. देखते हैं कितने लोग बता सकते हो. The right answer is C, है ना? Karol Nawrocki. So C is the right answer. और पोलैंड की कैपिटल क्या है? Yes, Pragya Pandey, you're right. Yes, Ananya, very good. Capital is Warsaw. You're right. And Pragya Pandey, you have answered option C, which is right. ठीक है ना? तो यहाँ पर इंडिया है. This one is Europe. ठीक है. और यूरोप में एक जगह है पोलैंड. ठीक है. इसकी कैपिटल है वारसो. Let's move on. Why are the new Bangladeshi banknotes significant? When recently is in the news. नए बांग्लादेशी बैंक नोट्स क्यों सिग्निफिकेंट है? Because they omit the human portrait of Sheikh Mujibur Rahman. Actually, क्या है? I hope you are aware. Sheikh Mujibur Rahman is considered as the father of nation of Bangladesh. In 1971, he helped it get independence, and his daughter is actually Sheikh Hasina, and she was the prime minister till August last year. And in August last year, she was overthrown. उनको हटा दिया गया प्राइम मिनिस्टरशिप से. और उसके बाद later on actually there is anger against Sheikh Mujibur Rahman and Sheikh Hasina both. That is why C is the right answer. हाँ.
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश. लेटर ऑन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज ताजुद्दीन अहमद. ठीक है. So the answer is first president of Bangladesh. Father of nation of Bangladesh कहते हैं, first president of Bangladesh, like that. C is the right answer, है ना? Yes, Ananya Khurana, you're right. C is the right answer, है ना? Let's move on to the next one. Which of the following institution helped develop Bharat Gen? बताइए. ISRO, नीति आयोग, IIT Bombay, AIMS Delhi. What is the right answer? Right answer is option C, IIT Bombay. ठीक है. So AI बेस्ड LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेज. कुछ नहीं है, लार्ज लैंग्वेज जैसे चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी एवरीवन नोस, है ना? जेमिनी चैट जीपीटी है तो जानते होगे. सो वो LLM का एग्जांपल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. लेकिन भारत जन में खासियत क्या? बिकॉज इंडियन लैंग्वेज जो 22 इंडियन लैंग्वेज है ना, इसमें आप टॉक कर सकते हो. ठीक है. इट मस्ट बी रिटन समवेयर. 22 इंडियन लैंग्वेजेस व्हिच इज मेंशन इन 8 शेड्यूल, है ना? सो खैर जो 22 लैंग्वेज है इंडिया की, उसमें आप बात कर सकते हो, बिकॉज चैट जीपीटी यू कैन टॉक इन इंग्लिश, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट ला गया ना. सो ऑफ कोर्स दैट इज अ ग्रेट थिंग, भारत जन. आप ट्राई करना अगर ट्राई कर सकते हैं, ऑल्दो आई हैव नॉट ट्राइड, लेकिन आप भारत जन सर्च करना, यू विल गेट टू नो अबाउट इट. तो इसको लॉन्च किया है. एक तो नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, IIT बॉम्बे का भी रोल है ना? और भी कुछ एजेंसी है. ठीक है. ओके. Yes, let's move on. Why is Rajiv Shukla set to become the next BCCI interim president? So BCCI के interim यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी बन जाएंगे. पहले वाइस प्रेसिडेंट थे. तो क्यों, क्या हो गया प्रेसिडेंट में को? What happened? The right answer is option C. Roger Binney reached the age cap of 70. So C is the right answer. ठीक है. So 70 years के अगर आप हो जाओगे, so Roger Binney जो करंट प्रेसिडेंट है ना, अभी रिटायर कर जाएंगे because he became the 70 years. So राजीव शुक्ला जी वाइस प्रेसिडेंट है, ये इंटरिम प्रेसिडेंट बन जाएंगे. इंटरिम मतलब टेम्पररी. नाउ देयर विल बी सेपरेट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट फॉर BCCI. ठीक है. तो दोबारा इलेक्शन होगा. सेक्रेटरी है देवाजीत सैकिया, मेंस कोच है गौतम गंभीर, वुमेन्स कोच है अमोल माजुमदार. ठीक है. So these are the basic things you should know. So C is the right answer. The next is which of the following Indian states has announced its introduction of basic military training from class 11th? किन्हें थोड़ा बहुत मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाएगा क्लास 1 से, बताओ बेसिक लेवल का. Which of the following Indian states? So the answer is yes, Pragya Pandey, you are right. Ananya Khurana, you both are right. B is the right answer, Maharashtra. ठीक है. हाँ, so involving ex servicemen, तो जो फॉर्मर मिलिट्री के लोग होंगे, they will be brought to train them, है ना? तो एक बेसिक आइडिया जाएगा, है ना? रफ. So B is the right answer. Let's move on to the next one. The Chenab Bridge, मैंने बात किया था कुछ थोड़ा देर पहले. It is notable for what? I think few minutes back I had discussed. India's longest rail tunnel, world's highest rail bridge, first magnetic levitation rail bridge, longest pedestrian rail bridge, है ना? सो जो कटरा से अगर आप श्रीनगर जाओगे ट्रेन से, नाउ इट्स वंदे भारत ट्रेन इज अवेलेबल फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर. सो व्हेन यू गेट अ चांस टू गो, यू विल सी दिस ब्रिज, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज. अगर आपको कटरा से श्रीनगर जाने का मौका मिले ट्रेन से, तो आपको मिलेगा रास्ता में. ठीक है. ये वाला ब्रिज यहाँ पे कटरा होगा. कटरा जो है ना, जम्मू से आई थिंक 40 किलोमीटर नॉर्थ होगा, और यहाँ पे श्रीनगर होगा. तो अब कटरा से श्रीनगर से जाओगे तो रास्ता मिलेगा. सो बी इज द राइट आंसर. यस, प्रज्ञा पांडे एंड अनन्या खुराना, यू बोथ राइट.
The next is what is the name of the recent covert drone operation of Ukraine used against Russian airbase? मालूम है क्या कहते हैं? यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, आपको पता होगा. सो यूक्रेन ने क्या किया था, ट्रक के अंदर ड्रोन्स डाल करके रशिया के अंदर भेज दिए, कई हजार, 4-5 हजार किलोमीटर अंदर, और उनके एयरफोर्स बेस पे जाके फिर ड्रोन को खोला गया, मतलब ट्रक को ओपन किया गया और ड्रोन ने अटैक कर दिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन? वेरी फेमस, काफी न्यूज में आया था. नेम ऑफ द ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन वेब स्पाइडर या स्पाइडर्स वेब. बी इज द राइट आंसर. काफी फेमस हुआ था. देखो क्या किया था, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रशिया है. यहाँ पे रशिया का कोई एक एयरफोर्स बेस है, तो यहां से इन लोगों ने ट्रक में डाल के ड्रोन भेजा, यहां तक गया, फिर जब यहाँ पहुंचा तब ट्रक से ड्रोन निकाला. सो ड्रोन वाज लाइक ब्रॉट फ्रॉम, आई मीन यूक्रेन में, है ना. यहाँ से ट्रक डाला, अब पता नहीं कैसे पास करा दिया, यहाँ तक पहुंचा. जैसे ही पहुंचा ड्रोन निकाला ट्रक से और द अटैक कर दिया. And almost I think 41 aircrafts were destroyed. Okay, so let me explain in English also. So a truck was sent from Ukraine to Russia. It was smuggled, rather I would say, and inside the trucks there were a lot of drones, that were military drones. So the truck moved almost 4,000 5,000 kilometers inside the Russia, and there is a military base, Air Force base. Just before the Air Force base, the truck was opened, and the drones were actually used to attack the Air Force base. Almost I think 41 aircrafts were destroyed. तो उसको ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब काफी न्यूज में था. So that is what you should know. Which of the following countries foreign minister has been recently elected as president of UN General Assembly? So UN General Assembly के जो president होते हैं, they are actually for 1 year from September, this September to the next September. इस सितंबर से अगले सितंबर तक जाते हैं. तो जैसे इस this year September they will be having a new president of UN General Assembly. ठीक है. Elections happen in मई जून के आसपास. ठीक है. But the tenure starts, UN General Assembly president tenure starts from September, from this year September to next year September. Which country's former foreign minister has been elected? So the right answer is Germany. So A is the right answer. ठीक है. So Germany की है Annalena Baerbock, है ना. She has been elected as the UN General Assembly president. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं. फर्स्ट वुमेन UN General Assembly president कौन थी? This is asked in many exam. कोई बता सकता है? Anyone? First woman UN General Assembly president. बताइए. Anyone? हाँ, very good. Ananya Khurana, you're right. Vijay Lakshmi Pandit. So she was sister of Jawaharlal Nehru, है ना. First UN General Assembly woman president. And there is only one incident, or only one once where UN General Assembly president is an Indian, and that is also Vijay Lakshmi Pandit. 1958 के आसपास की बात होगी. ठीक है. The next is India has signed MOU, मतलब Memorandum of Understanding, with which country to build first indigenous polar research vehicle. MOU को आप समझ लो agreement है, समझ लो एक तरह का. इंडिजिनस का मतलब होता है मेड इन इंडिया, मतलब मेड इन योर ओन कंट्री, मतलब इंपोर्ट नहीं करना, अपने कंट्री बनाना. वेसल जो होता है एक तरह की शिप होती है. पोलर रिसर्च वेसल मींस दिस शिप कैन बी सेंट इन नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल. सो इट मींस इट दिस शिप कैन कट आइस और वाटर इवन ऑन द बॉडी, ऑन द वाटर बॉडी. अगर समुद्र पे बर्फ वगैरह है उसको भी काट के निकल जाती है, पोलर रिसर्च वेसल, है ना. सो इंडिया ने टाई अप किया नॉर्वे के साथ. सी इज द राइट आंसर. यस प्रज्ञा पांडे, यू आर राइट. ठीक है. इंडिया कंपनी GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, है ना, एंटरप्राइज, है ना, कोलकाता बेस्ड शिप मेकिंग कंपनी है. ठीक है. और नॉर्वे की कॉन्सबर्ग, इन दोनों ने मिलकर टाई अप किया है. ठीक है. द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन चेस प्रोडिजी रिसेंटली डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन क्लासिकल फॉर्मेट इन नॉर्वे 2025? आर प्रज्ञा, निहाल सरीन, डी गुगेश अर्जुन, इरग्यासी. मैग्नस कार्लसन को हराना बहुत बड़ी बात है. इज अ वेरी फेमस टॉप क्लास प्लेयर.
है ना, इनका वीडियो भी आया था, डी गोकेश इज द राइट आंसर। अब देखना एक वीडियो है, उसमें आप ये एक मीम भी बन गया था, जस्ट सर्च इट डी गोकेश मैग्नस कार्लसन, when Magnus Carlsen's response after losing with D Gogesh, ऐसे सर्च करना यूट्यूब पे या कहीं भी मिल जाएगा नेट पर। So he was even shocked कि हम हार कैसे गए, है ना। So the right answer is option C, D Gogesh is the right answer, ठीक है। The next is, which of the following two countries are co-hosting 2025 Women's ODI World Cup? बताइए। The right answer is option B, India and Sri Lanka, है ना। Yes, प्रज्ञा पांडे, you're right, हाँ। So इंडिया और श्रीलंका, है ना, सितंबर नवंबर में होगा, ठीक है। So that is what you should be knowing, ठीक है। Yes, Ananya Khurana, you're right, हाँ। The next is, what is the aim of Aravali Green Wall project launched by PM Modi? अरावली माउंटेन रेंज का नाम सुना है? इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। राजस्थान में, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ऐसे जाता है ना, ईस्ट ऑफ राजस्थान में मिलेगा। सो ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है, यानी कि एक पेड़ का पूरा वॉल खड़ा कर दिया जाएगा टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड रिस्टोर लैंड। सो सी इज द राइट आंसर। यस प्रज्ञा पांडे, यू राइट। तो ये दिल्ली देख रहे हो, ये वाला हरियाणा, ये जो ट्रायंगल से देख रहे हो ये हरियाणा है, ठीक है, और बाकी जो ये राजस्थान है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला राजस्थान है, ओके। सो यहां से यहां तक एक अरावली माउंटेन्स है ना, आप जानते होगे। सो अरावली के आसपास एक ग्रीन वॉल बनाने का प्लान है, ठीक है। मतलब इसी के बगल में ग्रीन वॉल, मतलब 5 किलोमीटर चौड़ा वेट का एक पूरा पेड़ का लाइक वॉल खड़ा कर दिया जाएगा, लाइक दिस, है ना। यू अंडरस्टैंड, लाइक देयर विल बी अ series of trees 5 kilometer width and starting from Delhi till end of till Gujarat, है ना। So just parallel to Aravallis. So what is the idea? So idea is that the desertification should stop, है ना। So that's the idea. So ये उसको कंट्रोल करने के लिए। Who has won 2025 South Korean snap presidential election? What is the right answer? Because I'm sure you must be aware, in the last 6 months there are a lot of crises in South Korea. So the right answer is option C, Lee Jae-myung. योन सोक योल को तो अरेस्ट कर लिया गया ना, मतलब ये इनको रिमूव कर दिया गया। ये एक्चुअली इन्होंने किया ये था, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में ही इम्पोज्ड मिलिट्री क्या कहते हैं उसको, मार्शल लॉ लगा दिया था। उसके बाद फिर काफी हंगामा हुआ, उनको रिमूव कर दिया गया, इम्पीचमेंट हुआ एटसेट्रा। सो इनको तो हटा दिया गया था, इनफैक्ट अरेस्ट वगैरह भी कर लिया गया। न्यू प्रेसिडेंट इज ली जाई मयोंग। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इंडिया है, ये साउथ कोरिया है, इसकी राजधानी है सियोल, कैपिटल इज सियोल, ठीक है। हाँ देखो ना, इम्पीचमेंट ऑफ यून सोक योल, इम्पीचमेंट रिमूव कर दिया गया था, काफी हंगामा हुआ था साउथ कोरिया से रिलेटेड, है ना। तो ये न्यू वन है ना, देखो जून में बनाया गया। The next in which of the following mines has become India's first green mine? Green mine मतलब है कि mining is done in such a way so as not to harm the environment. इस तरह से माइनिंग किया गया ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा जाए। सो कहां पे ऐसा हुआ? Yes, right answer is B. Very good. Yes, Ananya Khurana, you're right. सुरजागढ़ माइन महाराष्ट्र, है ना। ठीक है, अब पढ़िएगा कैसे, हाउ दे आर डूइंग इट।
थ्रू एक्सटेंसिव एफॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह लगाया जा रहा है इंश्योर करने के लिए मिनिमम से मिनिमम इन्वायरमेंट डैमेज हो. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? थीम भी बताना है एंड व्हिच व्हेन डू वी सेलिब्रेट. ऑब्जर्व, ये सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. फिफ्थ जून को सेलिब्रेट किया था ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. यस अनन्या, वेरी गुड. 5 जून. थीम क्या है इस साल की? व्हाट वाज द थीम दिस ईयर? थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, हैशटैग. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन वाज द थीम दिस ईयर. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग टॉप्ड, मतलब रैंक 1 आया. फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स लिस्ट इन हुरून इंडिया रिपोर्ट. हुरून is an organization from England, है ना, London based, which comes up with the rich list rankings, different rankings. फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स में टॉप कौन किया है? राइट आंसर इज राधा वेम्बू. बी इज द राइट आंसर, है ना, को फाउंडर ऑफ जोहो. ठीक है, so B is the right answer. Let's move on. Which of the following IPL teams won IPL 2025 टाइटल? ये तो आसान है, काफी न्यूज में था. ठीक है, सो फाइनल मैच हुआ था पंजाब किंग्स 11 पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और आरसीबी ने जीती है फर्स्ट टाइम, है ना. यस, लेड बाय विराट कोहली. Yes, Ananya, you're right. D is the right answer. And after that, an unfortunate incident happened where the stampedes happened in Bangalore also. So D is the right answer. Yes, Pragya, right. Huh? Which of the following two wetlands were added in Ramsar list in June 2025? So earlier we had 89 Ramsar sites, 2 were added, and now we are having currently 91 Ramsar sites in India. बताइए. हाँ, खींचान एंड मीनार. सो बी इज द राइट आंसर, है ना. खींचान इन फालोडी, मीनार इन उदयपुर, बोथ इन राजस्थान, है ना. सो बी इज द राइट आंसर. यस अनन्या खुराना, यू आर राइट. The next one is which new international corridor was announced at G20 Summit 2023? Because ये अक्सर न्यूज में रहता है, तो आप बोलोगे सर 2023 का भी क्यों बात पूछ रहे हो? Because it is still in the news if you read newspaper. तो अक्सर न्यूज में आता रहता है. G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ था, जहां पर ये बात कही गई थी. इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. सी इज द राइट आंसर. देखो ऐसे कुछ था, इंडिया से आप चलोगे, मुंबई से मिडिल ईस्ट यूएई जाओगे, यूएई से सऊदी अरब होगे जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल हैफा पोर्ट, और यहाँ निकल जाना. पेरिस इज इन ग्रीस. ठीक है, इस पूरे रूट को कहते हैं आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ, है ना. सो द राइट आंसर इज सी. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, अक्सर न्यूज में रहता है ये. ठीक है, मतलब देखो, एक तो नॉर्मल रास्ता के पैसे जाओगे, जो नॉर्मल वाला रास्ता है ऐसे हो करके, और यहाँ पे सुइस कैनाल क्रॉस करके ऑफ इजिप्ट. सो ये तो नॉर्मल रास्ता है. सो देयर इज अल्टरनेट प्रपोज रूट दैट इज कॉल्ड एज आईमेक. यहाँ से यूएई चलेंगे, यूएई से सऊदी अरब होते हुए जॉर्डन से होकर कैसे इजराइल होते हुए. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन सिंगर रिसेंटली वन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राजा कुमारी. ठीक है, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू विन एएमए अवार्ड. आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स अवार्ड होता है कुछ, है ना, जस्ट रिमेंबर इट, अमेरिका में. Yes, Ananya, right. D is the right answer. The next is what is India's first 100% FDI project in aviation sector? Aviation in airline industry. हवाई जहाज से related aviation. 100% FDI project.
राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेवार एयरपोर्ट. आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सुना होगा जेवार एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, नया एयरपोर्ट बन रहा है. सी इज द राइट आंसर. ठीक है. 100% एफडीआई यानी फॉरेन कंपनी जूरिच इंटरनेशनल, स्विट्जरलैंड आई थिंक बेस कंपनी होगी, वो आकर के बना रही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, है ना. So the next is, what is India's first e-commerce platform to secure RBI lending license? मतलब ये कि now it has become NBFC, non-banking financial company, and it can extend loans etc. also. What is the right answer? Yes, the right answer is Flipkart. Very good, Ananya Khurana, you're right. B is the right answer. ठीक है. The next is, what is the name of India's first indigenously built anti-submarine warfare shallow water craft? Indigenous मतलब होता है made in our own country, है ना. Anti-submarine warfare shallow water craft. The right answer is option C, INS Arnala. C is the right answer. ठीक है. The next is G7 summit 2025 कहाँ होगा? अरे हो चुका अब तो. Now it is done. In July it is done. Few days back. I think June में होता, not July. जुलाई में तो G BRICS summit हुआ है ना. So June में we have seen G7 summit which happened in where? कहाँ हुआ 2025 का G7 summit? कनाडा, कनानास्किस, है ना. अल्बर्टा कनानास्किस जगह है, कनाडा में वहां हुआ. ठीक है. सो दिस इज आवर लॉ इंटरेस्ट चैनल, क्लैट का चैनल है, उसमें आप जाके अगर चाहो तो देख सकते हो उसके डिटेल G7 समिट का. द नेक्स्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्लास्टिक फ्री पोर्ट? इंडिया का पहला प्लास्टिक फ्री पोर्ट कौन सा बना है? इसका अर्लियर नेम था ट्यूटिकोरिन पोर्ट, या तमिलनाडु में. द राइट आंसर इज VO चिदम्बरनार पोर्ट. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट वन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज रिसेंटली अनवील्ड वैक्स स्टैचू ऑफ सुनीता विलियम्स? वैक्स स्टैचू समझ ना, मोम का जो स्टैचू बनाते, कहाँ रिलीज किया गया, बनाया गया, अनवील किया गया? The right answer is option B. Asansol is the right answer to this question. ठीक है. ठीक है. आप देख सकते हो. Who among the following promulgated amendment reserving 1/3 of the seats for women in Ladakh Hill Council recently? 1/3 seats रिजर्व किया गया था. तो ये डिसीजन कौन लेगा? Who will take this decision? Promulgate an amendment. So the right answer is president. C is the right answer. ये तो पता होना चाहिए, कॉमन सेंस से भी कह सकते हो, है ना. उम्मीद पोर्टल is related with what? अभी रिसेंटली ना, फ्यू मंथ्स बैक उम्मीद एक्ट वाज पास्ड. वो क्या से रिलेटेड था? उम्मीद एक्ट. द राइट आंसर इज यस, वक्फ से रिलेटेड. उम्मीद एक्ट जो है, वक्फ एक्ट को उम्मीद एक्ट कहते हैं ना. इसका फुल फॉर्म है कुछ, ठीक है, लंबा चौड़ा सा. हाँ, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट. सो इसीलिए उम्मीद पोर्टल जो है वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. आपको रजिस्टर वगैरह करना है तो वहां जाके कर सकते हो. ठीक है, दैट इज द आइडिया. So this is all about today's class. Now I'll be meeting you next Tuesday 7 p.m. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thanks for watching. Have a nice day.